फौरन बाद या किसी और की तकरीर के बाद मुझे मौका मिला और जब मैं तकरीर के लिए खड़ा हुआ लोकसभा में तो मैंने प्रभुनाथ सिंह से कहा कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि इस ऐवान में एक जंगली जानवर आ चुका है। मैंने कहा प्रभुनाथ सिंह तुम जानना चाहते हो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर कौन है? तो प्रभुनाथ सिंह जो सामने की सफ में बैठता है पलट कर मुझसे कहा कि तुम बताओ। मैंने कहा सुनो, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर नरेंद्र मोदी है जिसकी जमात की तुम तायीद कर रहे हो। बेशक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बेशरम और जंगली जानवर है, मैं मानता हूं उस बात को सर कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और फातिमी साहब गवाह हैं कि बीजेपी के लोग वो ज्यादा जो हमेशा बुज़दिल है उस दिन ज्यादा अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे थे, दूर से आस्तीन चढ़ा रहे थे, मगर वहीं पर लोकसभा में एक बिहार का एक शेर है जिसको दुनिया नहीं जानती, उसका नाम शहाबुद्दीन है। वो शहाबुद्दीन और फातिमी उठकर आए तो तमाम के तमाम लोग जहां पर खड़े थे वहीं पर बैठ गए। बहरहाल बहुत दबाव डाला गया कि आप खड़े होकर अपने जुमले को वापस ले लीजिए। मैंने कहा अगर तुम ज्यादा दबाव डालोगे तो मेरी जमात के सदर का हुक्म हुआ है कि नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से बेहतर होगा कि मैं इस ऐवान लोकसभा की सीट से इस्तीफा देकर चला जाऊं, मगर अपने जुमले को वापस नहीं लूंगा। बहरहाल अजीजान मिल्लत, बताना यह चाह रहा था कि सालार मिल्लत बेशक एक बेबाक फायद थे। आप चेयर को उत्तर देना, उनको नहीं। मैडम मैंने जो जवाब दिया है तथ्य आज तक वही है, और उसमें जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि माहौल कब सुधारा गया है, बच्चे जो बाहर गए हैं नॉन लोकल्स वो भी वापस आ गए हैं, उनका एग्जाम के लिए व्यवस्था किया गया है, एक अच्छा कदम उठाया तो कम से कम उसका तो सराहना कीजिए। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी जी। I am really shocked at what the Congress member has just said. Please. That he has completely forgotten that 3,000 Jammu and Kashmir police people laid down their lives in fighting militancy in Kashmir. So please don't demean the Jammu and Kashmir police. I want to know from the Honorable Minister that this is the only engineering college in the valley, and by removing J&K police, have you given a perception that you do not trust them? And also that that the non-locals can only be protected by CRPF. That is not good in controlling alienation, madam, because we know for a fact that whenever there is no more militancy in J&K, you accept that, but when incidents of militancy take place and in the namaz-e-janazah of these militants thousands of people are attending, this shows the alienation is increasing for the youth under the age of 18. What are you going to do to ensure that this alienation stops at this instant? Because if you don't stop this alienation, believe me, no amount of CRPF would be able to create that emotional or physical security. My pertinent question to the Honourable Minister through you, madam, is to ensure that alienation stops. Will this government, because you are sharing power with PDP, would you remove AFSPA from at least Srinagar? Would you remove more military bunkers from Srinagar? And this is your government. What is the steps you're going to take to decrease the alienation and to create security? Because you cannot give an answer over here and say, because this is the only engineering college. Yes, this is the only engineering college in the valley, and this has to be answered by the government. Okay, yes. Madam, the honourable member has stated, which is correct. Everybody wants that the state police should handle the law and order situation. If anything erupts in any part of this country, central armed forces are there to assist the state government if the situation needs to be. So that is why we prefer that Jammu and Kashmir state government should handle the situation. And in the NIT campus, it is the students and the administration, they want that the central forces should be deployed inside the campus. This is not on the basis of our suo motu action, but on the basis of the demand made by the authority. And the students want that
CRPF or SSB or anybody. Central Armed Forces should be deployed there. And on top of that, the state police also is deployed there. It is not the unilateral decision of the central government. And this will not lead to the alienation in the feelings of the Kashmiris. At the same time, the question he asked about the Armed Forces Special Power Act is not related to this question. आदित्यनाथ जी। अध्यक्ष महोदय, NIT श्रीनगर की घटना पर सरकार ने उसके उपरांत जो कार्रवाई की है वह स्वागत योग्य है। खासतौर से जो गैर कश्मीरी छात्र वापस अपने घरों में जा चुके थे और जिनकी परीक्षाएं छूट चुकी थी, उन्हें सुरक्षित वापस भेजने और उनकी परीक्षा का जो आश्वासन अभी माननीय गृह मंत्री ने दिया है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक प्रश्न, जो JNU में जब भारत विरोधी नारे लगे थे, जो लोग उस भारत विरोधी नारे का समर्थन उस समय कर रहे थे, मुझे सुखद अनुभूति हुई। कांग्रेस के हमारे मित्रों ने आज NIT घटना का निंदा की है। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि भारत माता की जय और तिरंगा लगाने का विरोध, चाहे वह NIT श्रीनगर में हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित किसी भी संस्थान में, क्या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए किसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता सरकार महसूस करती है? अध्यक्ष जी, इस तरह का जो कानून या इस तरह की व्यवस्था केंद्र सरकार किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में तो दखल अंदाज तो नहीं करते हैं, ये भावना की बात है। और जो अच्छी बात मैं और शेयर करना चाहता हूं कि जो 19 अप्रैल को वहां के डायरेक्टर, NIT के डायरेक्टर और छात्रों के बीच में जो बैठक हुआ दिल्ली में, उसमें भी ये निर्णय किया कि भारत का जितना भी जो मुख्य रूप से त्योहार है वो भी NIT श्रीनगर में भी अभी से मनाया जाना चाहिए। ये अच्छा निर्णय किया है और ये सबके लिए भला है कि ऐसा माहौल रहे। क्वेश्चन नंबर 23, श्री श्रीकांत शिंदे जी। श्रीकांत शिंदे इज देयर? नो। श्री विनायक राउत। 23. यस। Statement is laid on the table of the House. यस, सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं जानकारी पूछने के लिए इस प्रश्न रखा है। अध्यक्ष महोदय, सारे भारतीय सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पिछले कई वर्षों से जानना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्व सरकार ने इसके ऊपर चुप्पी रखना ही पसंद किया। इस वक्त मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की ये मांग सामने रखकर उसका एक महत्व जानकर सुभाष चंद्र जी के बारे में पहले चरण में 100 फाइल सामने रखी और अभी 50 दूसरे चरण में 50 फाइलें भी सामने रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं सरकार से, इस सारे फाइल के पढ़ने के बाद क्या सरकार इस निर्णय तक पहुंच चुकी है क्या कि नेताजी के गुमनामी के बारे में असलियत क्या है? अगर हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है? मैडम, उसका पूरा अगर ब्यौरा देंगे तो बहुत लंबा चर्चा बन जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि 3 कमेटियां बनी हैं। 2 कमेटी पहले, एक 1956 में बने, एक 1970 में, और आखिरी जो बना है वो जस्टिस मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना है। तो सब जितना इंक्वायरीज का रिपोर्ट आया है सब मेल नहीं खाता है, और पहले 2 इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है उसका तो ये मानना क्लियर है कि नेताजी का वो क्रैश हुआ था, प्लेन ताइवान से जाकर के जापान में क्रैश हुआ था, वहां उनका मौत हुआ है। बाद में जस्टिस कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ये उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें भी स्प्लिट था। बाद में केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। तो इसलिए ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका कंक्लूसिवली मैं यहाँ स्टेटमेंट देने के लिए समर्थ नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक फाइल्स का सवाल है, अब आपको पता ही है कि हमने सारा फाइल निकालने शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया, और ये क्योंकि 150 फाइल्स तो हमने ऑनलाइन कर चुके हैं और अभी से 25 फाइल हर महीने देने का
फैसला किया वो इसलिए क्योंकि उसको वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और खास करके जो प्रिलिमिनरी कंजर्वेशन प्रोसेस होता है, वो जो पुराना कागज वगैरह है उसको बहुत तरीका से उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, तो ये लंबा प्रक्रिया है। उसका पूरा प्रक्रिया को हम लोग मानते हुए हर महीने 25 फाइल्स पब्लिक के सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूं जो डिक्लासिफाई हो चुके हैं। Thank you. Any second supplementary is there? No. Sri B. Mehtab ji. Yeah. Madam, I am reminded here when this question comes up to answer by the government, what the present Home Minister had assured in 2014 before the election for Lok Sabha commenced, that was on 23rd January in Cuttack, in the birthplace of Netaji Subhash Chandra Bose. He had categorically declared or assured all of us that the files which are not being declassified will be declassified once our government comes to power. And this declassification has started. But my point here is, though first lot 100 files were declassified and now 50 files have been declassified, this time period is from 1956 to 2009. Our concern was what happened from 1945 till 1948 or 1949. When are those files going to be declassified? Do you have those files with you, or are there more files in British, with the British government? Are you accessing those files which are with Japanese government? Are you also accessing some files which are with the then Soviet Union or the present Russian government? Because the international situation has changed drastically and there is no need to be secret about revealing those information or getting those informations. My concern here is the idea that was propagated during that time that there was a crash. I don't agree with the Honorable Minister's statement. Then when Shahnawaz committee had put forth their report, there were dissent note in that report also. In Mukherjee Commission, there was a clear-cut case that the crash did not happen. Even in the Khanna Commission, Khanna Committee report, it was also said that it is doubtful. Therefore, the basic question that arises with every patriotic Indian is, did that crash happen or not? Whether Netaji was alive after that so-called crash or not, those files are yet to be revealed. My question is, when are you going to reveal those files, declassify those files? Let me reiterate again to make it more specific. The first two committees, they said that the plane crashed and the body was highly burned and brought to the hospital, and the SS contained in the Renkonji temple belongs to the Netaji. But the Justice Mukherjee Commission of Inquiry did not agree with that. So there is a division within the various reports of the committees. Regarding the information with various countries, we have established contacts with all the relevant and important countries associated with Netaji Subhash Chandra Bose. Austria has not found any material related to Netaji in their archives. Russia, which you mentioned, do not have any documents pertaining to Netaji Subhash Chandra Bose within their territory. United Kingdom has given 62 files, and that is whatever is available in British Library. The most important part which I'm going to mention is about Japan. Japan has 5 files related to Netaji Subhash Chandra Bose, which are going to be very crucial. The motion that has been moved by the Treasury Bench MP, Mr. Rajiv Pratap Rudy, and seconded by Mr. Ram Vilas Paswan. The ruling party has come with a brute majority, sir. And I'm reminded of what Winston Churchill said during Suez Canal crisis. He said to Eden, what an excellent place to fight back. Sir, when Mr. Paswan was seconding or supporting the motion, he said during his speech that why should one keep on harping about Godhra? I would like to say, in my opinion, sir, that there are 4 incidents in the history of this country which shook the foundations of this country. First, the assassination of Mahatma Gandhi.
Second, sir, the killing of genocide of Sikhs in Delhi. Third, the destruction of Babri Masjid. And the fourth, the 2002 Gujarat program. One cannot forget, जिसमें इंसानियत होगी वो इन वाकयात को याद रखेगा, जिसमें इंसानियत जिंदा होगी वो इन लोगों को, इन खातियों को भी माफ नहीं करेगा. If that is the case, Nothing will go on. Sir, if that is the case, then the day is not far when this August House will give a posthumous Bharat Ratna, if not Bharat Ratna, a Veer Chakra to Nathuram Godse. Third point, sir, I want to I'm congratulating your Prime Minister. आप अपने भाई को समझाइए. आप बोलना चाहेंगे, मैं बैठता हूं. I concede. You want to say on the mic, please say it. माइक पे बोलिए, मैं बैठने तैयार हूं. आप माइक पे बोलिए, मैं बैठने तैयार हूं. मेरे भाई, आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते. आप याद रखिए. Please sit down, please sit down, please sit down. Nothing on record unless the chair allows. Sir, I want to congratulate the Honorable Prime Minister. I want to congratulate the Honorable Prime Minister for breaking this myth of Muslim vote bank. You have destroyed it. I congratulate you. But what you have done in process, you have reiterated what I have been saying from 1950 onwards, that there is an Hindu vote bank which you consolidated in your favor. I congratulate you for that. And your victory is a Pyrrhic victory. Why? Because you say, आप माइक पे बोलेंगे, मैं बैठता हूं. मैं बैठता हूं, आप माइक पे बोलिए. Please sit down. Please sit down. सर, आप माइक पे बोलिए मेरे भाई. इतना मत पुकारिए, आवाज बैठ जाएगी. Please sit down. 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 Cooperate with the chair. Please cooperate with the chair. Please. Presidential address, please, instead of politicizing your intervention on the I don't need education from you. You should educate your own brother. You have not educated and controlled your brother. Don't educate me. Don't talk about me. Tell the chair. Sir. Please sit down. Please sit down. No. There will be no record. No record. No. Please sit down. Please sit down. He has only few minutes to speak. Please sit down. Sir, inclusive development the government talks about. I would like to put a question to the honorable members. You might disagree with me. You might detest with me. But please understand that the diversity and pluralism is the ethos of this nation. How can the inclusiveness represent the August House? How many Muslim MPs are here? People, I'll come to it. Sir, I agree with you that the Kashmiri Pandit should be sent back to Srinagar. And we will ask you in 2019. And I want the Muslim Kashmiris also should go back to Kashmir, who have left their place because of militancy, like place of Kulgam. Sir, inclusiveness. Why is it that only 21 Muslim members have been elected, Muslim MPs? Why is it that I am still here? And I have opposed Mr. Modi as Prime Minister and I have won. But where is the inclusiveness? Where is the pluralism? Where is the diversity? I leave this question to the Treasury benches. Sir, in the fourth point, on paragraph number 17, you talk about making minorities equal partners. What about how equal partners? Your own minister on the very first day said Muslims are not minorities. Then am I supposed to believe that a minister is created or given a ministry for 80,000 Parsis only? That cannot be the case. Article 29 and 30, the Prime Minister-elect says that he swears by the Constitution. Article 29-30 clearly says linguistic and religious minorities. That gives me entitled right. What will have my question to the ruling party is, what about 4.5% reservation given to minorities, not to Muslims, which includes Sikhs? Our Sikhs don't want Buddhists, they don't want Christians, Muslims. 4.5. I want to ask the government, when the Prime Minister stands up to reply, if he so believes in the inclusion of this nation, what will his government propose to do for 4.5%? Sir, I am concluding in 2 minutes, sir. Only they disturb me, sir. Sir,
Now I want to, sir, the government talk about making equal partners. Akshardham judgment came on May the 16th. Didn't the Supreme Court say, didn't the Supreme Court pass strictures on the then Home Minister, who's now the Prime Minister, non-application of mind in Akshardham? Will the state government apologize? I have lost 11 years. My constituency, one Gauri was in jail, in Sabarmati jail for 7 years. Who's responsible for their lives, sir? Who will bring back the 11 years? Another point, sir. I stand here before you, sir. I stand here before you, sir, as a son of Ehsan Jafri. I stand here before you, sir, as a brother of Ishrat Jahan. I stand here before you, sir, as an uncle of Sadiq. I stand before you as a voice of those who have been made voiceless of the Gujarat genocide. I want justice to be done to those poor souls. I would like to know from the government, in paragraph number 39, zero tolerance towards communalism. What is happening in the nation? May 16, Bijapur. May 16th, Ahmedabad. Mewat. Now in Pune. The Maharashtra government is weak and spineless government. They should have put a ban on Avina Bharat. Unfortunately, they could not do that, sir. Sir, let me conclude by saying about my state of Telangana. I am concluding, sir. Sir, please, I beg you for half a minute, sir. I am concluding, sir. Half a minute, sir. My state of Telangana. My state of Telangana. How is it that when I am the right owner of that place, my place is given for under Polavaram project? It is unconstitutional. 10 lakh tribals will be displaced. Is the land being given? Is the submerged land being taken from Odisha? Is the submerged land being taken from Chhattisgarh and being given to Andhra Pradesh? I would demand a separate high court should be created in Telangana. The present chief does not want a separate high court of Telangana. I would urge upon the government. I conclude by saying I oppose this motion. Thank you, sir. Please sit down. I am not yielding to you. I don't accept this from you. Please, Mr. Now, who will return back the lives of those 19 Muslim boys? What will happen? What will happen to them? What will happen to them? Who will bring back the lives of those people? And one thing that has to be understood over here, this so-called facade, that harassment of Muslims or Christians will only take place where you don't have secular government. I don't agree with that concept, that notion. This is a well-planned program by all those forces who are hell-bent on dividing India. I would like to request my friends over here that power is not eternal. Today it is UPA, tomorrow it can be you, which I don't want you to be, but it is not eternal. But what will be left of India, I say, if we continue with this politics of hatred, divisiveness, where you antagonize the whole one Muslim community, one Christian community? What will happen? It is you who are sowing the seeds of terrorism. It is not me. By your hate propaganda. And how is it, Mr. Honorable Home Minister, that after a bomb blast takes place in Hyderabad, within 10-15 minutes, your agencies selectively have their blue-eyed boys in all national newspapers, in all TV channels? Immediately, Muslims are responsible. Muslims are responsible. Muslim areas have become a heaven of terrorists. Why can't you stop this, I say? This is a UPA government. This is a government led by Manmohan Singh. This is not a government led by Atal Bihari Vajpayee. This is what I conclude कर रहा हूँ. जरा सुनिए आप. इसीलिए हम बता रहे हैं, बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ. मैं बराबर मजम्मत करता हूं शर्मा साहब को जो मारा गया, मजम्मत करते उसको. जिन लोगों ने शर्मा साहब को मारा, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहेंगे कि उनको सूली पर चढ़ाओ, वरना बीच चौरास्ते पर रखकर खान इजाजत देगा तो गोली मारो. मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये मुतालबा करता हूं कि बाटला हाउस के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको कौन देता है कि मुझे मेरी वफादारी पर शक करे? क्या कानून को पासो लिहाज आप नहीं रखेंगे? क्या कानून को फॉलो नहीं करेंगे? आप जो कहेंगे वो सच, हम जो कहेंगे झूठ. स्वामी लक्ष्मणनंदा स्वामी को मारने वाले माओइस्ट नहीं थे, आप करें क्रिश्चियन. मुसलमान मारे तो इंडियन मुजाहिदीन, यानी क्रिश्चियन माओइस्ट हो गए, मुसलमान इंडियन मुजाहिदीन हो गए, ISI हो गए. ये कब तक चलेगा? इसीलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले आपका काम करना है कि आप अपने एजेंसीज में, चाहे वो सेंट्रल IB हो, बड़े बड़े ओहदों पर सेकुलर जहन रखने वाला अफसर को लाइए. आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल पर हम पाबंदी इसलिए आयद नहीं कर सकते क्योंकि बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. क्या यह मनमोहन सिंह की सोच है? क्या यह UPA की सोच है? मैं जानना चाहता हूं होम मिनिस्टर साहब, जवाब दीजिए हमको.
हिंदुस्तान का मुसलमान जानना चाहता है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहता है कि बजरंग दल पर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए, तो फिर 2002 के इंतखाबात के बाद मुसलमानों के 100 पर इख्तियार मिला आपको, और आपका एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल को पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। 6 मुसलमानों को जिंदा जला के मार दिए आदिलाबाद में, मैं जाकर लाशें उठा, हिंदू वाहिनी के लोग, और आपकी हुकूमत सोच रही है तेलंगाना बनाने के लिए। अभी तेलंगाना नहीं बना तो हमारे जानों को मार के जिंदा जलाया जा रहा है। क्या आप तेलंगाना बनाकर हमको उन लोगों के हाथों में छोड़ देंगे लड़ते हुए? और याद रखिए, अगर तेलंगाना बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ इजाफा होगा। सियासी तौर पर सियासी अरे अमेरिका से क्या मालूम हिंदुस्तान में? प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए मिस्टर ओवैसी, तुम बैठो, तुम प्लीज कम टू द अमेरिका से आके सेनेटर तुम क्या बात हिंदुस्तान के बारे में विषय पर आइए, विषय से बाहर। अगर तेलंगाना बनाएंगे यकीनन मुसलमान, ये तो विषय से बाहर हैं आप। ऐसे लोग हैं 20 किलोमीटर दूर है तेलंगाना, अलग मामला है। गया आपका एमपी कांग्रेस का, क्या आपका गया वहां पर मुसलमानों पर हमला हुआ? या बैठ के बड़े बड़े बातें करते, बैठ जाइए आप। अरे आप बैठ जाइए, आपको क्या मालूम, तुम्हारा क्या मालूम, कोई जान खतरा नहीं। अहम बात हम ये बोलना चाह रहे हैं, अहम बात ये बोलना चाह रहे हैं। लास्ट क्या है, तेलंगाना बना तो इनकी सीट में लास्ट लाइन, इनको अपनी टिकट की पड़ी है, मुझे अपनी जान की पड़ी है, मुझे अपने मुस्तकबिल की पड़ी है। आखिरी बात स्पीकर साहब, गुजरात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 6.5 साल से गोधरा के जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया जेलों में जिंदगी गुजार रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोटा नहीं लगा सकता। होम मिनिस्टर साहब, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नानावती के कमीशन के जो कंक्लूजन थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी कि नहीं, उन पर पोटा नहीं लगाया जा सकता। तो आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मुझे बताइए। हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप उन लोगों पर पोटा नहीं लगने देंगे? आखिर में हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं सर कि यूपीए की हुकूमत को यह सॉफ्ट तरीका नहीं चलने वाला। आप उसूल की बुनियाद पर इंसाफ करिए हमसे, वरना हिंदुस्तान का जो नौजवान मुसलमान है यकीनन मायूस हो रहा है, सिस्टम से उसका एतमाद हट रहा है। इसके बावजूद भी वो उम्मीद करता है कि ऐसे जगहों से, इस ऐवान से, हिंदुस्तान के तमाम जस्टिसों से हमको उम्मीद है इंसाफ की। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा कि यकीनन इन तमाम चीजों में इजाफा होगा। अगर ये ऐवान, ये गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहां से मिलेगा हमको इंसाफ? तो इंसाफ करिए, जो जान और माल पर हमला उसको रोकिए, और आप सिर्फ इंसाफ करने से ही, दिलों को, दिमागों को साफ करने से ही इंसाफ के हद तक। नाउ श्री असाउद्दीन वासी। सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सर, मैं सिर्फ चंद सवालात हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला के सामने रखना चाह रहा हूं, और जब वो जवाब देंगे मैं उम्मीद करूंगा कि वो मेरे इन सवालात का जवाब देंगे। यहां पर बहस इसलिए हो रही है कि इफेक्टिव मैकेनिज्म को इवॉल्व किया जाए। मैं आपके जरिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूंगा, क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरकावाराना फसादात होते हैं, जो हमारी मुल्क के लिए सबसे बड़ा सालिमियत को खतरा है इस मुल्क के लिए, वो है फिरकावाराना फसादात। क्या यह बात सही नहीं है सर कि जब फिरकावाराना फसादात होते हैं तो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है, और जब तक पुलिस में तमाम तबकों की नुमाइंदगी नहीं होगी, चाहे अक़लियतें हो, दलित हो, हम उन फसादात को रोक नहीं सकते? क्या वो मेरी बात से मुत्तफिक है कि क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स होमोजेनियस है, पार्शल होती है, तो क्या पुलिस फोर्स को तमाम तबकों की नुमाइंदगी के लिए क्या करेंगे? दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत, वज़ीर दाखिला साहब, ये ऐलान किया, इस ऐवान में बात को रखा कि इस साल आप लोग 12 लाख करोड़ का टैक्सेस आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब 12 लाख, यानी 2 लाख करोड़ का इजाफा का आपने तख्मिया लागत किया है, आपने उम्मीद रखी है। अगर ये खेल चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान को मारने का अगर खेल चलता रहेगा, फिरकावाराना फसादात चलते रहेंगे, तो क्या होम मिनिस्टर साहब, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि 2 लाख करोड़ जो इजाफा टैक्सेस आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको मिलेगा? वो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तीसरी बात ये होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि मैं बड़ा मुतमईन हूं कि जो बीजेपी के मौजूद रुकन ने जो बात कही है, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो भी कहना था हमेशा कहते, हम 10 साल से सुन रहे हैं, मगर क्या वो मुत्तफिक है उस गुफ्तगू से?
पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में हैं, आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है, आपकी नजर में कोई सब बराबर है, तो क्या आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं? मेरा चौथा सवाल उनसे यह है, सर मैं पूछना चाहता हूं, जितने हिंदुस्तान में फसादात हुए उसकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसको लाया जाता? क्या ये मेरी बात सही नहीं है वजीर दाखिला साहब कि भागलपुर के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, क्या या हुकूमत ने उसको प्रेसिडेंट मेडल नहीं दिया, उस एसपी को प्रेसिडेंट मेडल दिया गया? मेरा चौथा सवाल हुकूमत से, वजीर दाखिला से ये सर आपके जरिए से पूछना चाहूंगा, क्या यह बात गलत है, क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां के एनकाउंटर की जो फाइल आपके पास आई हुई है, जो आईबी का ऑफिसर है उस पर आप कह रहे हैं केस डायरी ला कर दो? सर क्या यह बात गलत नहीं है कि लोकस स्टैंड ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का? इस ताल्लुक से आप फैसला कब करेंगे? मैं आपके जरिए से वज़ीर दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके गुरु हो सकते हैं कोई, मुझे आप ये बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिंदुस्तानी उसी को कहेंगे जो हिंदू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरु कहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू है। छठा सवाल, मेरा सातवां सवाल हुकूमत से यह है, मैं सातवां सवाल हुकूमत से वज़ीर दाखिला से करना चाह रहा हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि आप ही के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लोग बयान देते हैं, तुम गुजरात भूल गए तो मुजफ्फरनगर को याद करो? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए वज़ीर दाखिला साहब। नौवां सवाल मेरा आपसे यह है कि आप ही के तंजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों को और मुसलमानों को हिंदू धर्म में लेकर आएंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज आप हुकूमत कर रहे हैं, आप हुक्मरान हैं, मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है, मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप सिर्फ मुस्लिम तंजीमों पर नजर रखेंगे आपकी आईबी, या फिर आप अक्सरियती तबके के तशद्दुद पसंद फिरका परस्त ताकतों को जो बम ब्लास्ट भी किए, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे? नहीं रखेंगे? मेरा आखिरी सवाल हुकूमत से यह है सर कि क्या आप इस मुल्क के पुराशूब माहौल में जहां पर कत्ल गारतगिरी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलाएगी ताकि एक मुस्बित पैगाम हुकूमत को दिया जा सके? मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं ये कि क्या यह बात सही है कि क्या यह बात सही है कि आप इख्तिदार पर आ चुके हैं, मगर क्या खत्लो गारतगी के ऊपर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने इख्तिदार के महल को बनाएंगे? आप इख्तिदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जाएंगी। इसलिए मैं हुकूमत से इन सवाल मैं तकमील कर रहा हूं, मैं तकमील सर, मैं कंक्लूड देखिए सर, मैं हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि सूरत का बम ब्लास्ट, अक्षरधाम का बम ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। होम मिनिस्टर साहब, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का एतमाद हासिल करेंगे? ये बुनियादी सवालात हैं। आखिरी और अहम बात, क्या आप इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इसके इथॉस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसको बर्बाद कर देंगे? मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं है, ये किसी मुसलमान का सवाल नहीं है। गजानर की टिकट से भी मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। So, sir, allow me to finish. Now let me, madam, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ओवैसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर, मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। आज मैं कहती हूं और आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है? उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है। उसमें यह लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, and I am quoting, madam, my friends in Telangana can possibly have access to that document and verify it, and if I am wrong can correct me. पुलिस ये कहती है that when they rushed to the university, they found the room open, dead body removed from the hanging and kept on a table. A handwritten suicide note was written which did not blame anybody.
and specifically stated that nobody is responsible for this act. My request is, madam, this is not my submission, but that of the police in a state which is not politically. But she is not yielding. I know, sir. That's why I'm saying, if I'm wrong, correct me. No, nothing. मैडम, Yes. टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की। Nothing will go on record. आप बैठिए, कुछ नहीं कहा, आप बोलिए। मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की, गांधी ने अवामी कौम परस्ती की बात की, दोनों ने हुब्बुल वतनी को कौम परस्ती पर तरजीह दिया। बीजेपी की तरफ से कौम परस्ती की बात हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं इनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, एक कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, नागा लिम, नागा एकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं किए, सिंगापुर में किए। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तायीद कर रहे हैं, कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं, आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं। क्या आप पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तायीद क्यों कर रहे हैं? कहां गए आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गए आपकी कौम परस्ती? कहां गए आपके भारत माता के वो नारे? कहां गए आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत? जब पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद करार दिया, ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कहा, आप उसकी बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, अफजल मसला नहीं है। अफजल कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस पर आप तवज्जो देंगे? और यहां पर कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं इनकी नहीं मानता इनकी इस बात को भी। इन्हीं के दौर में अफजल को फांसी दी गई थी, कानून का फैसला था, मगर क्यों नहीं अफजल की बेवा को उससे मिलने दिया गया? क्यों नहीं अफजल की लाश को उसके बेवा के हवाले किया गया? कांग्रेस पार्टी भी उतना मुलविस है। सेडेशन की जब बात आती है, महाराष्ट्र में आपने सेडेशन लगाया, आज आप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं बीजेपी से, क्या कन्हैया पर आप इल्जाम साबित कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे? कन्हैया पर कोई इल्जाम नहीं है, वो झूठा इल्जाम है, नारे नहीं लगाए गए, पुलिस की रिपोर्ट है। मैडम, रोहित की बात, मैडम मैं खत्म कर, रोहित की बात, रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इधर कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम, मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी, सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए मैं हुकूमत, इट्स ओके, हो गया। राजेश रंजन जी, यू वांट टू स्पीक? बोलिए। गलत हो रहा है, जेएनयू में दौरा गलत हो रहा है, और इस तरह से करने से आप जेएनयू में नहीं दाखिल हो सकते। बैठिए, हो गया। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं। कहाँ कर रहे हो? बात को मुकम्मल प्लीज। यस, बात खत्म कर रहा हूं। हाँ मैडम, मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया। यस। आई एम कोटिंग, मैडम स्पीकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवाजी के खिलाफ लिखा,
Congress politicians allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. Hindu-Christian riots in Kanyakumari. How the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities. You are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. History taught to standard 6. And I quote, Madam Speaker, Kashmir is a much demonized land today. That the state militates against the atrocities of the Indian state. You teach a 6th standard child this. Are we shocked that when these children go to a university, they said Kashmir ki azadi tak jang ladenge? My तकलीफ सुन लीजिए ओवैसी साहब, सुन लीजिए. Scenario 4 on page 5. Orders issued to Delhi schools after the death of Prime Minister Indira Gandhi. Check what a trainee teacher teaching English sailed through her period. One of the words given to the children to draft a sentence was the word. ये पोलराइजेशन आखिर हो क्यों रहा है? पोलराइजेशन के कारण क्या है? मुझे लगता है वह पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है एक तरफ आप कहते हैं हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ एजेंडा जो लागू करते हैं उसको सांप्रदायिक रूप से कॉम्युनल आधार पर लागू करते हैं. इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं. क्या एक सेकुलर एजेंडा है? दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया. क्या यही सेकुलर एजेंडा है? सांप्रदायिक आधार पर ये लोग बांटते हैं समाज को. और महोदय उसी प्रकार से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वहां पर जो योजनाएं हैं उसमें 20% मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया. कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा करके 300 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया जाता है. गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर या मजारों के नाम पर कब्जा न मत करने दो. लेकिन उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है. कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शासन की ये मंशा है, इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं. क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति, आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं. आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं. इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी है, जो लोग लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर दायर मुकदमे, चाहे वह राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का मामला हो या संकट मोचन मंदिर काशी में सीआरपीएफ कैंप रामपुर का मामला हो या गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का मामला, रघुनाथ मंदिर, ये जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया. न्यायालय अगर बीच में नहीं होता तो संभवतः अब तक वे आतंकवादी बाहर छूट करके पुनः नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है. और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा बनी रहे. महोदय,
चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है? कौन है सांप्रदायिक? कौन सांप्रदायिक है? और मुझे लगता है इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, जो हम लोगों ने जाना है, जो हम लोगों ने समझा है, इस सांप्रदायिक वह होता है जो कहता है कि मेरा इष्ट या मेरा देव या मेरा पैगंबर ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को नहीं। मुझे लगता है वह सांप्रदायिक है। हिंदू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। हमने किण्वंतो विश्वारंभ का संदेश दिया था, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश दिया था, हमने तो इस देश के अंदर एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति की बात कही है। जियो और जीने दो, वह विश्वास हमारा दर्शन करता है। और दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप, फालतू बात करते हैं। महोदय, उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो मैं भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा। और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय, कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे,
एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति, इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। और इसीलिए बंधु महोदय, इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया। इस देश के अंदर महोदय, असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझाड़ Under Rule 376, sir, the honorable member, while giving statement in his speech, he mentioned about communal rights. I request you that 2011 he has given a figures. Those are wrong figures. No, he has completely forgotten 10/2/2013. No. My question was there, sir. You cannot give wrong figures. Gujarat was the highest number followed by Madhya Pradesh. I have my question over here answer. I request you to check the record. Please. Sir, Please take it. Please. Say. No. Please. See, unmute my leg. See, on my leg, please. See, the member is speaking and giving some figures. You are disputing that figures. No. In your speech you can say there is no ruling. There is not out of. During your speech you can speak. You reply that. During your speech you can counter it. Not when your term comes. You at that time can dispute it. You continue. You can nothing will counter it. उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे, इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई, असम जलता रहा। और तो और कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश, पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है महोदय। असम के अंदर आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं और बेशर्मी के साथ देश के साथ खिलवाड़ उन्होंने वहां पर उनके माध्यम से करवाया है महोदय। और तो और हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी, कोयंबटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। ये क्या सेकुलर, क्या यही सेकुलर है? क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? और इस देश के अंदर महोदय, इस देश के अंदर क्या हुआ था हम भूले नहीं। महोदय 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ महोदय, आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं।
लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में। ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई, ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव पे, उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामलला मैदान पे लाठी चार्ज करके बेशर्मी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय, जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे महोदय, जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं तो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। और ये चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। Please. Sir, Rule 380. I'm quoting. No, I will ask. Rule 3. Sir. I am raising a point of order. While speaking, the member already made a defamatory statement. If the speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he used the word that we already raised the issues of communal violence. We are not against anybody. We want a secularism to be maintained in this country. Therefore, we made a discussion. But honorable member, while discussing, honorable member, while discussing, he used the name of Pakistan. He abused us for naming the Pakistan. This is unparliamentary, sir. This should be deleted. This should be deleted, sir. As per CIT, this should be deleted. मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आता हूं। It has to be decided. Please, Speaker has to give my ruling. He has been using the word Hindus and Muslims. Yeah. Saying. No, please. No, so you have raised certain objections. If any objections is in regard, that will go through and will explain you. Please continue. What do you have to say? उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने की बात किया था। हम लोगों ने तो नारा भी दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। हमने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन असम के अंदर अली और कुली का नारा इन लोगों ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही इनका सेकुलरिज्म है? महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में 118 घटनाएं घटित हुई, 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था। अब न्यायालय के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। काठ में इसलिए वहां पर विवाद होता है क्योंकि उस गांव में 4 धर्मस्थल हैं, 3 मस्जिद, 1 मंदिर। मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है, 3 मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है। क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है? क्या इसी को सेकुलरिज्म आप कहेंगे? और इसलिए महोदय, जो कुछ घटना घटित हुई मेरठ के अंदर, एक बालिका का अपहरण होता है और अपहरण होने के बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है कितनी शर्मनाक थी। महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस महिला हिंसा की बात हम कर रहे हैं, उस सब के बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं। इन लोगों के मुंह से इनकी जुबान नहीं खुलती उस मामले में। न्याय का तराजू तभी चलेगा जब इस देश के अंदर समान रूप से कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा। कानून इस देश में मत संप्रदाय मजहब के आधार पर लागू नहीं हो